Hello everyone, welcome back to the Maths Online classes, and in this volume we will solve the remaining part of the exercise 7.2 in which up to the 5 question we have solved in the last video. So let's start from the first 6th question. So today's first question is question number 6, part first. Our 6th question is convert the following in term of convert the following in between the 0 degree to 40 degree. Means some trigonometric functions are given here. First is sine 81 degree and sine 71 degree. Sine 81 degree plus sine 71 degree. इसका मतलब ये हुआ, what we have to do, we have to change this one angle from 0 to 45. मतलब हमें 0 से 45 के बीच में लाना है इसको. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो साइन 90 में से क्या माइनस करेंगे, 81 बचे जो कि 9, 90 माइनस 9 प्लस साइन 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री. क्लियर है, क्योंकि 90 माइनस 9 इज 81 डिग्री and 90 minus 19 is equals to 71. Sin 90 minus theta is cos theta and again cos theta. Now these both angles lie between 0 to 45. So this is the required answer of the first part of the question number 6. Now the second part अपने पास है tan 68 sec 68. ये हमें फंक्शन दे रखा है. tan 68 को अपन लिख सकते हैं अपन tan 90 माइनस 22 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 22 इज इक्वल टू 68. सिमिलरली sec 90 माइनस 22. क्लियर है बात यहां तक. tan 90 माइनस थीटा इज cot theta. sec 90 minus theta is cosec theta. और ये दोनों एंगल्स कहां पे लाई करते हैं, 0 to 45. Clear is it? Now the second next question number 7. Before it, pause this and note it down. What is the 7th question? Prove the following. क्वेश्चन दे रखा है हमें 7th is sin 65 degree plus cos 25 is equals to 2 cos of 25. अब देखो यहां से ये cos 25 already, so there is no need to change anything in this case. Now we will change this one only. So this can be written 90 minus 25 degree plus, first of all select LHS, which is sin 65 degree cos 25 degree. Sin 65 is sin 90 minus 25 plus cos 25 as it is. Sin 90 minus theta is cos theta and this is also cos theta and result is 2 cos of theta where theta is 25. Okay student, 8th क्वेश्चन आप खुद से सिंप्लीफाई करेंगे, 9th क्वेश्चन भी खुद से करेंगे. मैं 10th एक्सप्लेन कर रहा हूं. Our 10th क्वेश्चन is sin 90 minus theta into cos 90 minus theta इज इक्वल्स टू, हमें जो प्रूव करना है ये मैं यहां लिख देता हूं, tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. देखो क्या होगा, sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा. बात समझ में आई यहां तक.
अब देखो इसको इसके जैसा बनाना है, या तो इसको सिंप्लीफाई करें, आपका ये आ जाएगा सेपरेटली. फर्स्ट ऑफ ऑल वी solve the LHS. Now we will solve the RHS, but we can convert this one directly into the tan theta upon 1 plus tan square theta. So how it will do? Cos theta ये as it is रहने दो, इसका डेनोमिनेटर क्या होगा 1, क्योंकि कुछ डेनोमिनेटर शो नहीं हो रहा तो उसका डेनोमिनेटर 1 होगा. और इसको अपन लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा. ये तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेफ्ट राइट किया मैंने, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई. 1 को अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा. बात समझ में आई? अब देखो नीचे क्या चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा विल डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा, देन इट विल बिकम टेन स्क्वायर थीटा, एंड कोस स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा, रिजल्ट इज 1. तो हम क्या करेंगे, आई एम डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय कोस स्क्वायर थीटा. साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, ये तो कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं आया है. कोस कैंसिल बाय कोस, समझ में आए? ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ये बचा, फुल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा. सेपरेट कर रहा हूं डिनोमिनेटर को, प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन न्यूमरेटर हो गया आपका tan ऑफ थीटा, इट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 is equals to our right hand side. So now we have proved our 10th question, which is given in the form of this one and this one. Okay, student. So pause this and note it down, and now I am going to start the next part. Next question. What will be the next question? Question number 11th you will solve yourself, 12th you will solve yourself, 13 भी आप खुद से कर लेंगे. मैं 14 एक्सप्लेन करता हूं. क्वेश्चन नंबर 14, साइन थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा. और हमें इसके लिए प्रूव करना है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये हमें प्रूव करना है. चलो फिर करते हैं. देखो साइन थीटा एज इट इज, कोस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा एंड कोस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा. समझ में आई बात यहां तक? नेक्स्ट, कोस थीटा रिमेन सेम, साइन 90 माइनस थीटा इज कोस थीटा एंड साइन थीटा अपॉन कोसेक. ये कोसेक 90 माइनस थीटा नहीं था क्या? यहां पे सिर्फ कोसेक थीटा है. चलो देखते हैं कोसेक थीटा. ये कोसेक थीटा होगा. चलो ठीक है, जो बुक में है उसके अकॉर्डिंग करते हैं. ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा. और ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा. या फिर एक काम करो, या फिर देखो यहां से साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा इज कॉमन इन बोथ, सो टेक इट आउट. साइन थीटा कोस थीटा जो कि हमारा रिजल्ट है, हमें यही तो प्रूव करना है. तो इसको कॉमन लिया, यहां पे क्या बचा साइन थीटा. नहीं बेटा, यहां पे डेफिनेटली कोसेक 90 माइनस थीटा है, चेंज कर लेना बुक में. तो ये बनेगा आपका सेक थीटा.
अब देखो यहां से क्या बचा, साइन थीटा कोस थीटा यहां आ गया, बचा क्या साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा को मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर है बात? या फिर डायरेक्टली कर लेंगे, एक बार यूं ही पढ़ा रहने दो, कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा एज इट इज अपॉन सेक थीटा। समझ में आई बात यहां तक? साइन थीटा इंटू कोस थीटा रिमेन सेम, जो कि रिजल्ट है साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा इज अगेन साइन थीटा प्लस कोस थीटा एंड 1 अपॉन सेक थीटा इज कोस थीटा। क्लियर? it will become sin square theta and it will become cos square theta. So sin theta cos theta into sin square theta plus cos square theta, which is 1. So 1 into this is equals to sin theta into cos theta. So it is the 14th question's answer. Now let's start the next question, question number 15. आप कॉपी करें। क्वेश्चन नंबर 15 इज इफ साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, then find the value of theta when this one and this one both are acute angle. तो ट्रिग्नोमेट्री की जो भी आइडेंटिटी अपन रिसेंटली 6 जो फॉर्मूला यूज लिए हैं, साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, ये सभी किस एंगल पे अप्लाई होते हैं? ये ओनली ऑन acute एंगल पे अप्लाई होते हैं। तो हमारे पास ये केस होना चाहिए कि acute एंगल है या फिर नहीं है, बट इन दिस केस इट इज गिवन बोथ द एंगल्स आर acute एंगल। अब देखो बात ये आती है कि या तो इसको साइन में कन्वर्ट करो या फिर इसको कोस में कन्वर्ट करो। क्लियर है? अब देखो साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको यू लिखा जा सकता है कोस 90 माइनस थीटा, है ना? कोस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूं, या तो इसको कोस में कर लो या इसको साइन में कर लो। मैं इसको कोस में कर रहा हूं, इसको लिखा जा सकता है कोस 90 माइनस 3 थीटा, कोस 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा माइनस 60। बात समझ में आई? यहां से अपन कहें तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 6 डिग्री। नाउ ट्रांसपोज द लाइक वैल्यूज एंड द कांस्टेंट वैल्यूज। तो ये माइनस 3 थीटा और ये थीटा इधर आएगा तो माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 6 एंड माइनस 90, माइनस 4 थीटा is equals to minus 96 and theta is equal minus cancel by minus, theta is equals to 96 upon 4 24 डिग्री। और हमें क्या कैलकुलेट करना था? हमें थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हुआ। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 16th क्वेश्चन क्या रहेगा अपने पास? इफ सेक 5 थीटा इज इक्वल्स टू, ये भी सेम ही है, आप खुद से कर सकते हैं। इसमें साइन कोस था, वहां पे सेक कोसेक का, तो डायरेक्टली सेक को कोसेक में कन्वर्ट करें या फिर कोसेक को सेक में कन्वर्ट करें, आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 18। इट इज गिवन दैट A, B and C are 3 interior angle of a triangle ABC. Then prove that tan B plus C upon 2, tan B plus C upon 2 is equals to cot A by 2। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है यार, चलो देखो हम सेलेक्ट करते हैं LHS। LHS बाद में सेलेक्ट करेंगे, पहले B प्लस C की वैल्यू पता करते हैं। हियर हमें क्या क्या दे रखा? हियर A, B एंड C आर इंटीरियर एंगल्स
of a triangle ABC, ठीक है? यहां तक A, B and C are interior angles of a triangle ABC. अब ट्राइंगल की इंटीरियर एंगल है तो हमें उसके लिए ये डेफिनेटली पता होना चाहिए कि तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180. पता ही है ना ये बात, तो भाई कॉमन सी बात है ट्राइंगल की एंगल प्रॉपर्टी. अब हम पहले b प्लस सी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. देन b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस. Now what we need b plus c upon 2. So divide the both of the sides of the above equation by 2. ये लो 2 से डिवाइड किया. What did we get? b plus c as it is and 90. ये क्या बनेगा देखो, सेपरेट करेंगे तो 90 minus a by 2. Now apply this value in left hand side. So the remaining part of the question I am solving here, left hand side, which is tan b plus c upon 2. Got it? b plus c upon 2 की वैल्यू है 90 minus a by 2, which is equals tan 90 minus a by 2, and tan 90 minus theta is cot theta, which is equals to RHS. Finally, we have solved the question number 18 as we required, and only one question is remaining of the exercise, which is question number 19. So please pause this and note it down. Nineteenth question is, if cos 2 theta is equals to sin 4 theta, find the value of theta where 2 theta and 4 theta both are acute angles. क्या दे रखा हमें? If sin 2 theta is equals to cos 4 theta, sorry, cos 2 theta is equals to sin 4 theta. ये हमें स्टेटमेंट दे रखा है और हमें इसके लिए प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है, सॉरी, वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी? थीटा की. 2 थीटा एंड 4 थीटा आर acute angles. क्लियर? देखो यहां से समझते हैं हम इसको क्या लिख सकते हैं, या तो कोस को साइन में कन्वर्ट करो या फिर साइन को कोस में कन्वर्ट करो. तो मैं यहां से ये चाहूंगा कि कोस को साइन में कन्वर्ट कर लेते, बोथ आर इजी. सो कोस, इसको लिख सकते हैं अपन, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है? साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इज कोस थीटा. पता है ना ये बात? तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा इज 2 थीटा, तो साइन 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 4 थीटा. क्लियर है बात यहां तक? साइन कैंसिल बाय साइन, द रिमेनिंग वैल्यूज आर 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा. 2 थीटा को ट्रांसपोज किया तो 90 माइनस 4 थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी, 90 इक्वल्स टू 4 थीटा प्लस 2 थीटा. तो यहां से ये बना 6 थीटा इज इक्वल्स टू 90 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 90 बाई 6 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 15 डिग्री. सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर लास्ट क्वेश्चन of exercise 7.2. Finally, we have completed our chapter number 7th. It was the second chapter of the trigonometric portion. The very first chapter was trigonometric ratios. Second chapter was trigonometric identities. In we have discussed about the two type of the question. In first question, we discussed the prove one method, means trigonometric identities, and in this some cases like this which are related with the acute angles. And now in the next chapter, which is related with the height and distance, we will learn the new concept, new